دوستوں، آپ سبوں کا ایک بار پھر سے میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن کے اس ادبی چینل پر۔ میں ریاض احمد 110 مختصر ترین سوالات کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ انوار سہیلی کا اردو ترجمہ دبستان حکمت کے نام سے کس نے کیا، جو اردو میں پہلا ترجمہ ہے؟ فقیر محمد خان گویا نے کیا ہے۔ یہ فارسی کی کتاب قصہ چہار درویش کا ترجمہ میر امن سے پہلے کس نے کیا اور اس کا کیا نام ہے؟ تو یہ کیا تھا؟ میر عطا حسین خان تحسین نے، اور اس کا نام تھا نو طرز مرصع، اور یہ نو طرز مرصع میر عطا حسین خان تحسین کا لکھا ہوا ہے، اور یہ میر امن کے باغ و بہار سے پہلے یہ نو طرز مرصع کے نام سے ترجمہ ہو چکا تھا۔ اور یہ سوال نمبر 3 ہے، کالی داس کا ڈرامہ شکنتلا جس کا ترجمہ فورٹ ولیم کالج میں کیا گیا، اس کے مترجم کون ہیں؟ کالی داس کا ڈرامہ شکنتلا جس کا ترجمہ فورٹ ولیم کالج میں کیا گیا، اس کے مترجم کون ہیں؟ تو یہ ہیں کاظم علی جواں۔ یہ جو ہیں کاظم علی جواں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ قانون کی کتاب کا ترجمہ تعزیزات ہند کس ادیب نے کیا؟ یہ قانون کی کتاب کا ترجمہ تعزیزات ہند کس ادیب نے لکھا ہے یا کیا ہے؟ تو یہ جو ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال نمبر 5 میں ہے، علامہ اقبال کی منظوم فارسی کتاب اسرار خودی کا انگریزی میں منظوم ترجمہ کس نے کیا؟ یہ ہے پروفیسر اے آر نکلس۔ پروفیسر اے آر نکلس نے کیا تھا۔ کتاب باغ اردو کس کتاب کا ترجمہ کہی جاتی ہے؟ یہ میر علی افسوس کی جو کتاب ہے باغ اردو، یہ جو ہے گلستان سعدی کا ترجمہ ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ صبرس ایک تمثیلی داستان ہے، یہ کس کتاب کا چربہ ہے؟ تو یہ دستور العشاق۔ صبرس جو ہے ایک تمثیلی داستان ہے، یہ کتاب یہ کس کتاب کا چربہ ہے؟ تو دستور العشاق کا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 8 ہے، نظم طباطبائی نے کس انگریزی شاعر کی مشہور نظم ایلیجی کا ترجمہ گرے غریباں کے نام سے کیا تھا؟ تو یہ گرے۔ نظم طباطبائی نے کس انگریزی شاعر کی مشہور نظم ایلیجی کا ترجمہ گرے غریباں کے نام سے کیا تھا؟ تو یہ ہے گرے۔ اور اس کے بعد ہے فورٹ ولیم کالج میں قصہ چہار درویش کا ترجمہ دوسری بار اردو زبان میں کس نے کیا اور کیا نام رکھا؟ تو یہ میر امن نے اور باغ و بہار کے نام سے کیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج میں قصہ چہار درویش کا ترجمہ دوسری بار جو ہے اردو زبان میں کس نے کیا تھا؟ تو یہ میر امن نے کیا تھا، اور کیا نام سے؟ تو باغ و بہار کے نام سے کیا تھا۔ سوال نمبر 10 ہے کہ گل بقولی کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو یہ مذہب عشق کا ترجمہ ہے۔ گل بقولی یہ جو ہے مذہب عشق کا ترجمہ ہے، گل بقولی۔ اردو ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ تو یہ جو ہے شاہ رفیع الدین، یہ جو ہے صحیح ہو جائے گا جواب، شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کا پہلا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ شمال کا سب سے پہلا شاعر کون ہے؟ تو یہ ہے فائز دہلوی۔ کون ہے شمال کا سب سے پہلا شاعر؟ تو یہ ہے فائز دہلوی۔ شمال کا پہلا شاعر فائز دہلوی ہے۔ کہ قرآن اور پردہ اور حدیث اور پردہ یہ دونوں کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ قرآن اور پردہ، حدیث اور پردہ یہ دونوں کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ تو یہ مرزا عظیم بیگ چغتائی نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 14 ہے کہ اردو کی ایسی کتاب کا نام جس میں عربی فارسی کے الفاظ نہیں ہیں؟ تو یہ ہے رانی کیتکی کی کہانی، اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ تو انشاءاللہ خان انشاء نے لکھا ہے۔ حیدر بخش حیدری کی اس کتاب کا نام بتائیے جو حاتم طائی کی داستان پر مشتمل ہے۔ حیدر بخش حیدری کی اس کتاب کا نام بتائیے جو حاتم طائی کی داستان پر مشتمل ہے۔ تو یہ آرائش محفل ہے، یہ صحیح ہے۔
ہے کہ جوش ملیح آبادی کی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جوش ملیح آبادی کی سوال ہے کہ جوش ملیح آبادی کی اس کتاب کا نام کیا ہے جس میں انہوں نے آپ بیتی لکھی ہے؟ تو یہ ہے یادوں کی بارات۔ تو یادوں کی بارات کس شاعر نے لکھی ہے یا کس کی سوانح عمری ہے؟ تو یہ جوش ملیح آبادی کی سوانح عمری ہے اس کی۔ سوال نمبر 17 ہے خوش نامہ اور مرغوب القلوب کس کی تخلیقات ہیں؟ یہ شاہ جو ہے میران جی کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 ہے کہ سر سید کی تصنیف آثار و سنادید کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ یہ جو ہے 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ کون آثار؟ سوال نمبر 19 ہے سر سید احمد کی کتاب خطبات احمدیہ کب اور کہاں سے شائع ہوئی تھی؟ یہ کب اور کہاں سے شائع ہوئی تھی؟ لندن سے 1870 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ سر سید احمد کی کتاب خطبات احمدیہ یہ جو ہے لندن سے 1870 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 20 ہے کہ دلی کی مختصر تاریخ سر سید کی کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ آثار السنادید ہیں، اسے دلی کی مختصر تاریخ کہا جاتا ہے، اور آثار السنادید میں یہ دلی کی تاریخی عمارتوں کا اس میں ذکر ہے۔ سوال نمبر 21 ہے سر سید احمد خان کو کس کتاب کی وجہ سے ان کو لندن کی ایشیاٹک سوسائٹی کا اعزازی رکن بنایا گیا تھا؟ تو یہ ہے آثار السنادید۔ سر سید احمد خان کی کس کتاب کی وجہ سے ان کو لندن کی ایشیاٹک سوسائٹی کا اعزازی رکن بنایا گیا تھا؟ تو یہ ہے آثار السنادید۔ سوال نمبر 22 ہے کہ سر سید احمد خان کی پہلی تصنیف کا نام کیا ہے؟ تو یہ پہلی تصنیف کا نام ہے جامع جم۔ سر سید احمد خان کی پہلی تصنیف کا نام ہے جامع جم۔ سوال نمبر 23 ہے کہ شبلی کی کتاب المامون کا دیباچہ کس مشہور شخصیت نے لکھا ہے؟ یہ شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے المامون اس کا دیباچہ کس مشہور شخصیت نے لکھا ہے؟ تو یہ ہے سر سید احمد خان۔ یہ جو ہے شبلی کی کتاب المامون کا دیباچہ لکھا ہے۔ سوال نمبر 34 ہے شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی ان کے کس شاگرد نے مکمل کی تھی؟ تو یہ ہے سید سلیمان ندوی۔ ان کی پیدائش جو ہے بہار کے نالندہ ضلع میں ہوئی تھی، بہار کے نالندہ میں دسنا نالندہ میں ہوئی تھی۔ تو سید سلیمان ندوی ہی شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی کی تکمیل کی تھی، اور شبلی نعمانی کے یہ شاگرد تھے۔ سوال نمبر 25 ہے کہ شاہ حاتم نے اپنے کس اردو دیوان میں ایک مقدمہ فارسی میں لکھا ہے؟ شاہ حاتم نے اپنے کس اردو دیوان میں ایک مقدمہ جو ہے فارسی میں لکھا ہے؟ تو یہ جو ہے دیوان زادہ۔ شاہ حاتم نے اپنے کس اردو دیوان میں ایک مقدمہ فارسی میں لکھا ہے؟ تو یہ ہے دیوان زادہ۔ دیوان زادہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ شاہ حاتم کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 26 میں ہے کہ میر امن کی باغ و بہار کس سن میں تصنیف ہوئی تھی؟ یہ 1802 عیسوی میں۔ میر امن کی باغ و بہار کس سن میں تصنیف ہوئی تھی؟ یہ 1802 عیسوی میں تصنیف ہوئی تھی۔ سوال نمبر 27 میں ہے کہ سبرس کے مصنف کا نام اور سن تصنیف کیا ہے؟ اس میں پوچھا گیا ہے کہ سبرس کے مصنف کا نام اور سن تصنیف کیا ہے؟ تو یہ 1635 عیسوی اس کا سن تصنیف ہے، اور سبرس کے جو لکھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ ملا وجہی، اور ملا وجہی کا تعلق کس سے تھا؟ تو قلی قطب شاہی دور سے تھا۔ معراج العاشقین کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو یہ سید محمد حسینی گیسو دراز۔ معراج العاشقین کے مصنف کا نام ہے سید محمد حسینی گیسو دراز۔ اور سوال نمبر 29 میں ہے کہ نئے پرانے چراغ کس نقاد کی کتاب ہے؟ تو یہ علامہ سرور کی کتاب ہے
नए और पुराने चिराग। रजब अली बेग सुरूर की कौन सी किताब बहुत मशहूर है? रजब अली बेग सुरूर की कौन सी किताब बहुत मशहूर है? तो ये है फसाना अजायब। आसान है। और इसके बाद है उर्दू शायरी का पहला तज़किरा उर्दू ज़ुबान में किसने लिखा और किस नाम से लिखा? तो ये उर्दू शायरी का पहला तज़किरा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा। और उर्दू ज़ुबान में किसने लिखा? तो ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा। और किस नाम से लिखा? तो ये गुलशन हिंद के नाम से लिखा गया। तो उर्दू शायरी का पहला तज़किरा जो है ये उर्दू ज़ुबान में किसने लिखा? तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा। और इस किताब का नाम क्या रखा गया? तो ये गुलशन हिंद के नाम से रखा गया। पहला तज़किरा है कि उर्दू के उस पहले शायर का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी गीत की बजाय जदीद हिंदी कविता का असर कबूल किया। यह है अमीर हनफी। अली सरदार जाफ़री। अली सरदार जाफ़री। और ये तरक्की पसंद तहरीक की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1935 ईस्वी में सज्जाद ज़हीन ने लंदन में किंग नान रेस्टोरेंट में वहीं से शुरुआत हुई थी। और इसकी पहला इजलास जो है ये लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो ये कुली कुतुब शाह। ये कुली कुतुब शाह जो है ये उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर हैं। और इसके बाद सवाल है, सवाल नंबर 35 है कि रानी केतकी की कहानी किसकी लिखी हुई है? तो ये रानी केतकी की कहानी ये जो है इंशा अल्लाह खां इंशा की लिखी हुई है। इंशा अल्लाह खां इंशा। सवाल नंबर 36 है, घर से घर तक किसकी किताब है? तो ये अहमद नदीम कासमी की किताब है। घर से घर तक ये किसकी किताब है? तो अहमद नदीम कासमी की किताब है। और सवाल नंबर 37 है कि उर्दू का पहला गज़ल गो शायर किसे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो को पहला गज़ल गो शायर कहा जाता है। 38 में अमीर खुसरो नस्लन क्या थे? तो ये तुर्क थे। और रेख्ती का मुअज्जिद किसको माना जाता है? तो ये सआदत यार खां रंगीन को माना जाता है रेख्ती का मुअज्जिद। बिकट कहानी किसकी तसनीफ़ है? तो बिकट कहानी मोहम्मद अफजल की तसनीफ़ है। बिकट कहानी मोहम्मद अफजल की तसनीफ़ बिकट कहानी। मीर अनीस की तलब पर और इसरार पर पटना अजीमाबाद तशरीफ़ लाए थे तो नवाब कासिम खां। ये नवाब कासिम खां के तलब पर जो है ये मीर अनीस पटना या अजीमाबाद तशरीफ़ लाए थे। तो सवाल नंबर 42 है कि मीर अनीस 1871 ईस्वी में मौलवी सैयद शरीफ हुसैन खां की तहरीक और नवाब तहवर जंग बहादुर की सख्त इसरार पर किस जगह तशरीफ़ ले गए? तो ये दक्कन हैदराबाद। दक्कन हैदराबाद तशरीफ़ ले गए कौन? मीर अनीस। मीनाई गज़ल गोई के अलावा किस सिन्फ में गैर मामूली शोहरत रखते थे? ये नात गोई में। मीर मीनाई गज़ल के अलावा नात गोई में। नंबर 44 है कि जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में किस शायर को जिला वतन किया गया? ये बहादुर शाह ज़फ़र थे। जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में बहादुर शाह ज़फ़र को ये जो है जिला वतन किया गया। और सवाल नंबर 45 में है कि उस अदबी तकनीक का नाम बताइए जिसके ज़रिए किरदार के ख़यालात और जज्बात के बहाव को ख़ुद कलामी के ज़रिए पेश किया जाता है। तो ये शऊर की रूह। ये अदबी तकनीक का नाम बताइए जिसके ज़रिए किरदार के ख़यालात और जज्बात के बहाव को ख़ुद कलामी के ज़रिए पेश किया जाता है। तो ये शऊर की रूह हो जाएगा। और सवाल नंबर 46 में है कि सौदा को पहलवान सुखन किसने कहा है? तो ये शाह हातिम ने कहा। किसने कहा पहलवान सुखन सौदा को? तो ये शाह हातिम है। और शाह हातिम ने दीवान ज़्यादा लिखा है किताब। सवाल नंबर 47 है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक अदबी अंजुमन पंजाब किसके ईमा पर कायम की थी? तो ये कर्नल हॉलडैट के ईमा पर कायम की थी। और सवाल नंबर 48 में है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात के पहले एडिशन में किस शायर को शामिल नहीं किया? तो ये मोमिन खां मोमिन है। इनको पहले एडिशन में शामिल जो है नहीं किया। और इसके बाद है सवाल नंबर 49। तो सवाल नंबर 49 में है कि फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? तो सलीबा मेरे दरीचे में। ये सलीबा मेरे दरीचे में इस नाम से शाया हुआ था। और सवाल नंबर 50 में है कि खुतबात अहमदिया सर सैयद अहमद
खां के किस मुसन्निफ की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में लिखी गई थी? ये सर विलियम मेवर। खुतबात अहमदिया जो है ये सर विलियम मेवर के किताब के जवाब में लिखी गई थी। और सवाल नंबर 52 में है ख्वाजा मीर दर्द के वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर क्या तखल्लुस करते थे? ये इंदलीब तखल्लुस करते थे। कौन? ख्वाजा मीर दर्द के वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर इंदलीब ये तखल्लुस करते थे और ये शायर थे, ये फ़ारसी शायर थे। और इसके बाद है उर्दू के पहले मसनवी निगार कौन है? तो ये उर्दू के पहले मसनवी निगार निज़ामी बेदरी जो बहमनी दौर के हैं। और निज़ामी बेदरी की मसनवी ये जो है कदमरव पदमरव, और इनका पूरा नाम जो है ये फ़खरुद्दीन निज़ामी है। और सवाल नंबर 54 है गालिब का दूसरा तखल्लुस क्या था? तो ये दूसरा तखल्लुस गालिब का जो है ये असद था। असद गालिब का दूसरा तखल्लुस था। और सवाल नंबर 55 में ज़हूरुद्दीन का तखल्लुस हातिम है। हातिम से पहले वो तखल्लुस करते थे, वो रम्ज़ तखल्लुस करते थे। कौन? तो ज़हूरुद्दीन हातिम। हातिम जो है ये रम्ज़ तखल्लुस करते थे हातिम से पहले। और सवाल नंबर 56 में है मीर अनिस पहले हुज़ी तखल्लुस करते थे लेकिन एक मशहूर शायर के कहने पर तखल्लुस बदल कर उन्होंने अनीस रखा। उस मशहूर शायर का नाम बताइए। तो ये है नासिख। नासिख के कहने पर मीर अनीस ने अपना तखल्लुस हुज़ी के बजाय अनीस रख लिया था। और सवाल नंबर 57 में है कि पंडित शायरी में ये किसके उस्ताद थे? ये जो है मुंशी ज़फ़र अली अकबर इनके उस्ताद थे। पंडित अतन्ना शाह साहब जो है शायरी में ये मुंशी ज़फ़र अली अकबर के उस्ताद थे। और सवाल नंबर 58 में है कि इकबाल ने दाग दहलेवी से भी मशवरा सुखन किया था, लेकिन दाग से पहले उन्होंने किससे मशवरा सुखन किया था? तो ये गुरगानवी, मिर्ज़ा अरशद गुरगानवी। ये अल्लामा इकबाल ने दाग दहलेवी से पहले मशवरा सुखन किया था, उनका नाम था मिर्ज़ा अरशद गुरगानवी। है कि आतिश ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की? तो मुसहफ़ी की। आतिश ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी? तो ये मुसहफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की थी। और सवाल नंबर 60 में है अल्लामा इकबाल किस यूनिवर्सिटी में अरबी के उस्ताद थे? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में अरबी के उस्ताद थे। और सवाल नंबर 61 में है कि ग़ुबार ख़ातिर किसके ख़ुतूत का मजमुआ है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ुतूत का मजमुआ है। और सवाल नंबर 62 में है कि इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर में सबसे पहले कौन सी नज़्म सुनाई? तो ये नाला यतीम है। और सवाल नंबर 63 है उस शायर का नाम क्या है जो पहलवान भी थे? तो शेख इमाम बख्श नासिख ये जो है पहलवान भी थे और नासिख तखल्लुस करते थे। नासिख जो है ये तखल्लुस करते थे। किस शायर की मौत कोठे से गिर कर हुई थी? किस शायर की मौत कोठे से गिर कर हुई थी? यह हकीम मोमिन खां मोमिन की मौत कोठे से गिर कर हुई थी। प्यारे अंगारे के मुसन्निफ़ों के नाम बताइए। सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां और महमूदुज़ ज़फ़र। सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां और महमूदुज़ ज़फ़र। ये जो है तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले लिखा गया अंगारे किताब। सवाल नंबर 67 में है कि उर्दू नस्र का पहला अदबी कारनामा सबरस है, इसको मुल्ला वजही ने लिखा है। और सवाल नंबर 68 में है कि हाफिज़ महमूद शिरानी और अख्तर शिरानी का आपस में क्या रिश्ता था? तो ये बाप और बेटे का रिश्ता था। और सवाल नंबर उर्दू में नज़्म मार्रा की बाकायदा तहरीक किसने शुरू की थी? तो ये है अब्दुल हलीम शरद। और सवाल नंबर 70 में है कि नज़ीर अहमद के नावल इब्नुल वक्त में इब्नुल वक्त के किरदार को किस मशहूर शख्सियत से जोड़ा जाता है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ां है। नज़ीर अहमद के नावल इब्नुल वक्त में इब्नुल वक्त के किरदार को किस मशहूर शख्सियत से जोड़ा जाता है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ां। और इसके बाद है सवाल नंबर 71 है कि मीर अमन की ज़ुबान को दिल्ली के रोड़े किस मुसन्निफ़ ने कहा है? तो ये रजब अली बेग सुरूर ने कहा है। मीर अमन की ज़ुबान को दिल्ली के रोड़े ये रजब अली बेग सुरूर ने कहा है। और सवाल नंबर 72 है कि अल्लामा शिबली
फारसी के तज़किरा निगार हैं, बताइए कि उनका तज़किरा किस नाम से है। तो ये शेरुल आज़म के नाम से है, ये शेरुल आज़म के नाम से है। और सवाल नंबर 73 में है कि मीर सौदा दर्द मजहर किसको अपना उस्ताद मानते थे। तो ये खान आरजू को मानते थे। मीर सौदा और दर्द मजहर ये जो है अपना उस्ताद खान आरजू को मानते थे। और सवाल नंबर 74 में है हाइको किस मुल्क की सिन्फ शायरी है। तो ये जापान की, हाइको जापान की सिन्फ शायरी है। और सवाल नंबर 75 में है सर जॉर्ज गिरिसन क्या थे। तो ये एक माहिर लिसानियात थे। और सवाल नंबर 76 है फैज़ अहमद फैज़ के तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूआ का नाम क्या है। तो ये मीज़ान है। फैज़ अहमद फैज़ के तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम जो है ये मीज़ान है। और सवाल नंबर 77 में है कि बहरहाल मेरी नज़र में इब्नुल वक्त और सर सैयद एक ही हैं, ये दो शख्सियतें नहीं हैं। ये सलाम संदेलवी का कहना है कि मेरी नज़र में इब्नुल वक्त और सर सैयद एक ही हैं, ये दोनों शख्सियतें नहीं हैं। ये सलाम संदेलवी का कहना है। उर्दू किताब है उसका हिंदी में क्या नाम है। तो ये जो है प्रेम आश्रम नाम है हिंदी में। गोशे आफियत प्रेमचंद की जो उर्दू किताब है उसका हिंदी नाम है प्रेम आश्रम। और इसके बाद सवाल नंबर 79 है कि गुले राना एक तज़किरा है, उसके मुसन्निफ़ कौन है। तो ये अब्दुल हई। गुले राना ये किसने लिखी है। तो अब्दुल हई ने लिखी है। और सवाल नंबर 80 में है कि उर्दू में मरसिया का आगाज़ किस शहर में हुआ। तो ये हैदराबाद दक्कन में हुआ। उर्दू में मरसिया का आगाज़ किस शहर में हुआ। तो हैदराबाद दक्कन में हुआ। सवाल नंबर 81 में है कि आह तो उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, गुलशन बेमर में तेरा हमनवा ख़ाबिदा है। इकबाल के इस शेर में किन दो अजीम शायरों की तरफ इशारा किया गया है। तो ये गालिब और गोयटे। आह तो उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, गुलशन बेमर में तेरा हमनवा ख़ाबिदा है। इकबाल ने इस शेर में किन दो अजीम शायरों की तरफ इशारा किया है। तो ये गालिब और गोयटे। और सवाल नंबर 82 में है कि एहतशाम हुसैन की तनक़ीदी तफक्कुर का महवर क्या है। तो ये है मार्कसी फ़लसफ़ाए हयात। एहतशाम हुसैन की तनक़ीदी तफक्कुर का महवर क्या है। ये मार्कसी फ़लसफ़ाए हयात है। और सवाल नंबर 83 में है कि फसाना आज़ाद किस अखबार में क़िस्तवार शाये हुआ। ये जो है अवध अखबार, अवध पंज लखनऊ से निकलता था, इसमें ये क़िस्तवार शाये हुआ था। और सवाल नंबर 84 में है कि लफ्ज़ मिसरा के लफ्ज़ी माने हैं दरवाज़े का एक पट। सवाल नंबर 85 में है कि फ़ारसी में गालिब क्या तखल्लुस करते थे। तो ये असद तखल्लुस करते थे। में अल्लामा इकबाल ने एक गज़ल पढ़ी, उस मुशायरे में मिर्ज़ा अरशद गुरगानवी भी थे जो इन दिनों चोटी के शायरों में गिने जाते थे। इकबाल की गज़ल के एक शेर पर उन्होंने कहा था कि मियाँ साहबजादे सुभान अल्लाह, इस उम्र में ये शेर, वो शेर कौन सा है। तो वो शेर है मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क़ अनफाल के। और सवाल नंबर 88 में है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में और कब कायम किया गया। तो ये कलकत्ता में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को ये जो है कायम किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था। तो ये नौवारिद अंग्रेज़ों को यहाँ की ज़ुबान और माशरत से वाकिफ़ कराना था। और सवाल नंबर 90 में है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसकी कोशिशों का नतीजा है। तो ये जॉन गिलक्रास्ट का नतीजा है। और फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़ुबान के शोबे का सदर कौन था। तो ये जॉन गिलक्रास्ट था। और सवाल नंबर 92 में है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद हुआ। तो ये 1854 ईस्वी में बंद हो गया। और मीर अमन का तखल्लुस क्या था। तो ये लुत्फ़ तखल्लुस था। मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ़ था। और तलामज़ाए गालिब ये किताब गालिब के शागिर्दों के मुतालिक है। इसके मुसन्निफ़ कौन है। ये मालिक राम है। तलामज़ाए गालिब ये जो है मालिक राम इसके मुसन्निफ़ हैं। और सवाल नंबर 95 में है कि ज़िक्र मीर के नाम से मीर तक़ी मीर की सवाने उम्री किसने लिखी है। तो मीर तक़ी मीर ने लिखी है। मशहूर ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज की बेगम किस नाम से लिखती थी। तो ये हिजाब इम्तियाज़ अली के नाम से, हिजाब इम्तियाज़ अली के नाम से लिखती थी। सवाल नंबर 97 है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो खतूत हबीबुर रहमान खां शिरवानी के नाम लिखे थे किस नाम से शाये हुए। तो ये गुबारे खातिर के नाम से शाये हुए थे।
اور دبستان عظیم آباد کے معمار شاعر کون ہیں؟ تو یہ جو ہے راسخ عظیم آبادی ہے۔ سوال نمبر 99 کہ ممتاز مفتی کے افسانوں میں کون سی خصوصیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے؟ تو یہ نفسیاتی عکاسی۔ اور سوال نمبر 100 ہے کہ کس کے افسانوں میں کشمیر کی عکاسی زیادہ ہے؟ تو یہ کرشن۔ اور 101 سوال ہے کہ کس نے آتش کو اردو شاعر کا حافظ کہا ہے؟ تو یہ عبدالسلام ندوی نے آتش کو اردو شاعری کا حافظ کہا ہے۔ اور سوال نمبر 102 ہے کہ راجندر سنگھ بیدی کو تھیمس کا بادشاہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ کنہیا لال کپور نے کہا ہے۔ اور 103 نمبر سوال ہے کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام جو ہے کہاں اور کب عمل میں آیا؟ تو یہ لندن میں 1935 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ 35 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ اور 104 میں ہے نو آموز شعراء کے کلام پر اصلاح کی غرض سے کس شاعر نے قصر ادب کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا؟ تو یہ سیماب اکبر آبادی ہے۔ اور سوال نمبر 105 ہے کہ اردو میں سب سے پہلے طوائف کا کردار کس ناول میں پیش کیا گیا ہے؟ تو یہ ہے ایامہ۔ اور 106 نمبر کا سوال ہے کہ سعادت حسن منٹو کے کس افسانے پر مقدمہ چلا تھا؟ تو یہ ٹھنڈا گوشت ہے۔ اور کس پر نہیں چلا تھا؟ تو یہ ہے ہتک۔ اور سوال نمبر 107 میں ہے کہ انشا کی کس کتاب میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے؟ تو یہ سلگے گہر کتاب ہے جس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ اور سوال نمبر 108 میں ہے کہ مجاز انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں انقلاب کا مطرب ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو فیض احمد فیض نے کہا۔ اور 109 میں ہے کہ اردو کے 5 ادیبوں میں سر سید، خالد، شبلی، نذیر، آزاد کو عناصر خمسہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ مہدی افادی نے کہا ہے۔ مہدی افادی نے کہا ہے عناصر خمسہ، سر سید، شبلی، خالد، نذیر اور آزاد، محمد حسین آزاد۔ اور سوال نمبر 110 ہے کہ جذبی کو سلگتی ہوئی آتش رفتہ کا شاعر کس نے کہا ہے؟ تو یہ محمد حسن نے کہا۔ تو یہ مختصر سا سوالات اور جوابات جو 110 سوال و جواب پر مشتمل تھا، امید کر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔